Hello everyone, welcome to this webinar. Before starting this webinar, let me introduce you all to our speaker, education activist Sachin Usha Vilas Joshi. In Indian social system, we consider education as the foundation of the all-round development of the person. Our ex-president, late Dr. APJ Abdul Kalam said, if we want to make India a superpower, we need to work harder on three people: student, teacher, and parent, as these three will play a major role to create a future India of our dreams. Inspired by these words, Mr. Sachin Usha Vilas Joshi stepped into the field of education and started working towards his aim. Sachin Usha Vilas Joshi, a person who failed several unit tests in school, now holds 7 degrees in various subjects from Pune University in the field of management. In spite of getting attractive offers from renowned companies, he did not take up a job in multinational companies but chose to start a school for failures. After proving his mettle to change the perception of people towards failure, he expanded his vision and dreamt of taking education out of classroom boundaries. He made his mission to replace blackboard teaching with real-life experiences. At a very young age, Mr. Sachin Usha Vilas Joshi has done a remarkable work in the field of education, which has been recognized worldwide. To acknowledge his contribution in the field of education, he was invited by the European Council for the World Forum of Democracy. He is the first Indian to give a speech on education in the European Parliament. He has also worked on many novel concepts and started India's first mobile school for underprivileged children. He is the founder and director of the unique concept of education on wheels, for which he has been awarded by the Limca Book of World Records. He felt miserable to see children deprived of education, and then he took an initiative of bringing children who had never attended school into the mainstream of education through his campaign Every Child Counts. Under this project, 6,500 children were admitted in different municipal and government schools. He also educationally adopted 300 girl students from Sayyid community, and what makes it furthermost special is the fact that this is the first generation of the Sayyid community to receive formal education. He designed a mobile app to identify out-of-school children all over India. He is the founder-director of Espalier, the experimental school, which is a combination of Gandhi and Einstein philosophy. This experimental school has been awarded as the most innovative school as well as the best experiential school in India. A world organization designed for change has honored the most prestigious ICANN award to the Espalier School and bestowed EduHero Award to Sachin Joshi for his techniques of innovation in education. Recently, he established Espalier, the heritage school based on experiential learning, to conduct innovative research in the field of education. He conducts lectures, seminars, workshops on various subjects for students, parents, and teachers. He has minutely studied the development of a child's brain and its correlation with education. His research has been included in the syllabus for D8 teachers course. Mr. Sachin Usha Vilas Joshi also has the privilege to be an active member on different government education committees. He has been regularly publishing his articles related to education and child development. His innovative thought of adding his mother's name before his father's name has been widely appreciated by the society, and he has been instrumental in giving a new definition to middle name. His innovation, Radio Espalier, an on-air education platform to impart education to the students of tribal area who were deprived of online schooling during the pandemic, was awarded by DFC UNICEF with the Yuva Youth Challenge Award and with the Kotak Mahindra's Social Contribution Award in the field of education.
Taking a note of his commendable achievements, great personalities like Honorable ex-President Mrs. Pratibhatai Patil, international thinker Mr. Sandeep Vaslekar, senior socialist Anna Hazare, politician Shashi Tharoor, social activist Sham Manav, late poet Mangesh Padgaonkar, late sports psychologist Bhishmaraj Bamsar, and many more have blessed and appreciated his body of work. He was awarded as an Educational Hero Award by Design for Change. He was also awarded with the Best Teacher Award by Nasik Municipal Corporation, Rotary Club Vocational Award, Tejas Award by Deshdoot newspaper, Educationist Gloria D'Souza Award, and many, many more. ग्रेट इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं आप सभी पेरेंट का स्वागत करता हूं। वेबिनार चालू होने से पहले मैं जस्ट टेस्ट करता हूं मेरा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, ऐसे मैं आशा करता हूं। मैं जस्ट चैट बॉक्स में देखता हूं कि साउंड इज क्लियर और नॉट। मेरा आवाज़ आ रहा है आप सबको? जस्ट टाइप यस 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 ओके। और जिनको नहीं आ रहा है, यस थैंक यू गौरव, थैंक यू सोनिका, थैंक यू गैलेक्सी एमफिप, हीना, अमोल जी, थैंक यू सो मच। जिनको नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट होके वापस से आप ज्वाइन हो सकते हो, और आपके वीडियोस जो है वो बंद कर दिए, या घर में वाईफाई हो और आपके बाकी के कोई मेंबर्स हो वो कनेक्ट हो तो दिक्कत आती है। ओके, सो ग्रेट इवनिंग टू वन एंड ऑल। मैं आप सभी पेरेंट्स का स्वागत करता हूं और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप सभी पेरेंट क्यूरियस पेरेंट्स हैं, क्योंकि एजुकेशन फील्ड का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल का जवाब ढूंढ रहे आप सभी। तो सवाल बेशुमार है, जैसे कि एसएससी, सीबीएसई ये बोर्ड क्या है, आईसीएसई क्या है, मेरे बच्चों को फॉरेन भेजना है तो मैं कौन सा बोर्ड लूं, कैम्ब्रिज लूं या आईबी बोर्ड लूं। ओके, स्टेट बोर्ड आउटडेटेड है या अपडेटेड है, क्या स्कूल की फीस बोर्ड के हिसाब से डिसाइड होती है, हर बोर्ड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये आईसीएसई का जो आय है ये इंडिया का है कि इंटरनेशनल का है, क्योंकि आईसीएसई पे सवाल आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कम वक्त ये बोर्ड लागू कब से होता है, नर्सरी से या स्टैंडर्ड 10 से। यह सभी बोर्ड का मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सभी बोर्ड में क्या फर्क है। एंड $1 मिलियन क्वेश्चन, सभी बोर्ड के करिकुलम अलग अलग होते हैं क्या? क्या ये बोर्ड बच्चों को होशियार इंटेलिजेंस बनाता है? तो माय डियर पेरेंट एंड स्कूल लीडर्स, क्या यही सवाल आपके मन में उठ रहा है? Do you agree with me? Type your answer in the chat box if you are agree with me. Just type A or agree. देखते हैं कौन किस और क्या अलग सवाल है, मैं देखना चाहता हूँ। Agree, agree, agree. Yes, A, यशिका, बोता, प्रियंका, नीत, डॉक्टर वैभव। डॉक्टर वैभव one is my very good friend. Pretension, very good. So सबको यही सवाल है, right? तो आज हम सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढ लेंगे, और पहला ही $1 मिलियन क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या सभी बोर्ड का करिकुलम अलग अलग होता है? सो शुड आई ब्रेक योर हार्ट? प्लीज अलाउ मी। सो शुड आई ब्रेक योर हार्ट? ऑल माय डियर मम्मी एंड पापा, दिल थाम के बैठिए, इन सभी बोर्ड का सिलेबस अलग अलग नहीं होता। आई एम रिपीटिंग, इन सभी बोर्ड का सिलेबस अलग अलग नहीं होता। 80% करिकुलम सेम ही होता है, एक्सेप्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। ओके, जनरली हम नर्सरी के एडमिशन के लिए जाते हैं तो सवाल करते हैं आप कौन से बोर्ड का पैटर्न फॉलो करते हो। सो बेसिकली बोर्ड स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 8, और हम बोर्ड का काम यही होता है, हर बोर्ड का काम यही होता है कि वो 10th एंड 12th बोर्ड के एग्जाम कंडक्ट करें, उनके एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल टीचर्स उन्हें गाइड करें, कंटिन्यूसली उनसे क्या बोलते हैं ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं। सो नर्सरी टू स्टैंडर्ड 8 का हम क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, ए स्टैंडर्ड तक कौन सा बोर्ड्स होता है, यह पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं।
और सबसे अहम, ये पैटर्न और बोर्ड का करिकुलम ये कौन डिसाइड करता है? मैं आप सभी से अभी गुजारिश करता हूं कि आप ध्यान से सुने, आपके हाथ में पेन और नोटबुक हो तो प्लीज रखिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। हर देश का खुद का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जिसे एनसीएफ कहते हैं। अपने देश का भी एनसीएफ है, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड़ा। इस एनसीएफ में बच्चों को एज अप्रोप्रिएट क्या क्या सिखाना है, क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड वाइज करिकुलम डिसाइड होता है। बाहर के जो भी बोर्ड होते हैं जैसे कैम्ब्रिज, आईबी, उन्हें भी यही फ्रेमवर्क के गाइडलाइंस को फॉलो करना लाजमी होता है, मैंडेटरी होता है। अभी आपके मन में सवाल उठेगा कि एनसीएफ कहां से बनता है, राइट? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहां से आता है? तो जवाब है यह बनता है नेशनल पॉलिसी से। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो अगले 15-20 सालों तक रहेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनता है, और उनकी मदद से ही मतलब अलग अलग बोर्ड अपने टेक्स्ट बुक बनाते हैं। जनरली ये टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी, एससीईआरटी बनाती है। एनसीईआरटी ये नेशनल लेवल पे होती है, एससीईआरटी ये स्टेट में होती है। ये सिस्टर कंसर्न होती है सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की। दिस इज ऑल आर एसोसिएटेड। इनका अहम काम होता है कि एनसीएफ के द्वारा करिकुलम बनाना, और प्राइवेट बोर्ड जैसे कि आईसीएसई हो, कैम्ब्रिज बोर्ड हो, आईबी, उनके भी खुद के करिकुलम डिजाइन इंस्टीट्यूट होते हैं, सेम एज अ एनसीईआरटी, और उन्हें भी एनसीएफ के हिसाब से करिकुलम डिजाइन करना होता है। तो जनरली स्कूल में जो बुक्स बच्चों को पढ़ने के लिए होते हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी ऑपरेटिव होते हैं, वो मतलब उनसे ही परमिशन लेनी पड़ती है। पर आप लोग कहोगे कि कुछ स्कूल में प्राइवेट पब्लिशर के बुक्स होते हैं, तो ये बुक्स भी एनसीएफ के गाइडलाइन से ही बनती है। जी हाँ, और उनके लिए भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी का अप्रूवल लाजमी होता है। तो पॉइंट ऑफ कंक्लूजन यह है कि 80% सिलेबस हर बोर्ड का सेम होता है, क्योंकि सबका सोर्स एनसीएफ होता है। वहां क्लियर मेंशन होता है कि 6 साल के बच्चों को यह चीजें आनी चाहिए, 7 से 8 साल के बच्चों को इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज हो तो इतना इतना पढ़ना आना चाहिए, 8 से 9 साल के छात्रों को मैथ्स के यह कंसेप्ट समझने चाहिए। इस आधार पर ही सभी बोर्ड नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी, स्टेट लेवल पर एससीईआरटी टेक्स्ट बुक्स डिजाइन करते हैं। सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे कि स्टेट बोर्ड में हिस्ट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज गहराई से पढ़ाया जाता है। इन शॉर्ट, हर स्टेट की हिस्ट्री को इंफेसिस किया जाता है। सेम हैपन विद ज्योग्राफी। जबकि सीबीएसई और आईसीएसई इनके हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में नेशनल हिस्ट्री कवर करना पड़ता है। जैसे कि शिवाजी महाराज के साथ महाराणा प्रताप भी होते हैं, और इसे भी दूसरे नेशनल लीडर्स इसमें होते हैं। कैम्ब्रिज और आईबी में उन्हें पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री कवर करनी होती है। बस इतना ही करिकुलम में फर्क होता है, और उसमें भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का 50 to 60% कंटेंट सेम ही होता है। मतलब वर्ल्ड वॉर हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वॉर, सेम ही होगा। एक्चुअली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज नियर टू फार, मतलब नजदीक से दूर तक, गहराई तक, स्टेप बाय स्टेप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब होता यह है कि आईबी बोर्ड या सो कॉल्ड इंटरनेशनल बोर्ड के बच्चों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो पता है, मगर नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह या महाराष्ट्र का लोकल कल्चर, उससे वो गाफिल होते हैं, अनेवर होते हैं वो। और इसका इंपैक्ट यह होता है कि यह बच्चे डे टू डे लाइफ में लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसे हम कहते हैं लोकल टू ग्लोबल। यानी ग्लोबल लेवल पर सारी इंफॉर्मेशन है, पर लेकिन लोकल में गड़बड़ा जाते हैं। जबकि नेशनल एंड स्टेट बोर्ड के बच्चों को दोनों हिस्ट्री पता होती है, लोकल भी और ग्लोबल भी। तो हम जस्टिफाई यह करेंगे कि हर सब्जेक्ट का 80% सिलेबस सेम होता है, क्योंकि मैथ्स एंड साइंस के सभी कंसेप्ट यूनिवर्सल है, नो वन कैन चेंज देम।
फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस। स्टेट बोर्ड में कुछ और आईबी में कुछ अलग पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स एंड साइंस पूरे वर्ल्ड में सेम ही होते हैं। फिर डिफरेंस कहाँ है? आप तो बोलो डिफरेंस तो है सर, तो कहाँ है? तो डिफरेंस टेक्स्ट बुक्स में होता है। अभी एसएससी, सीबीएसई, आईसीएसई एज पर एनसीएफ गाइडलाइन से बच्चों को जितना एज अप्रोप्रिएट पता होना चाहिए उतना ही कंटेंट होता है उनमें। फॉर एग्जाम्पल 7th स्टैंडर्ड को बच्चों को पाइथागोरस है, तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को जितना इंफॉर्मेशन चाहिए उतना ही शामिल किया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी या उसे हम गवर्नमेंट बुक बोलेंगे, ओके, दैट मतलब ज्यादा इजी लैंग्वेज में, वह प्रिसाइज एंड वेल एक्सप्लेन होते हैं। और यही पाइथागोरस इन प्राइवेट बुक्स में बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं विच वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। इससे होता यह है कि बुक्स के पेजेस बढ़ जाते हैं और उससे बुक्स की प्राइस बढ़ जाती है। और प्राइस बढ़ गई तो जरा करीब आइए, स्क्रीन के करीब आइए, मैं बताता हूँ क्या होता है प्राइस बढ़ गई तो। आइए करीब आइए, कान लगाइए। जब प्राइस बढ़ते ना, स्कूल के परसेंटेज यानी कमीशन बढ़ते हैं। और ये सब जगह पे, इंटरनेशनल बोर्ड में भी यही होता है। एक्सेस इंफॉर्मेशन, इतनी ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, बच्चा पढ़ पाएगा क्या? जो ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। गूगल पर तो हर हफ्ते 40,000 बुक्स पब्लिश होते हैं। सो फीडिंग अननेसेसरी और एक्सेस इंफॉर्मेशन इज नॉट एजुकेशन। यहां मुझे विवेकानंद याद आ रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन का बहुत ही प्यारे लफ्जों में एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी इन अ मैन। जो बच्चों के अंदर है उसे बाहर निकालना, इसे शिक्षा कहते हैं। और हम अंदर का बाहर नहीं निकाल रहे, बल्कि बाहर का अंदर जबरदस्ती घुसा रहे। तो एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दो ना, एक्सेस दे के बर्डन क्यों डाल रहे हो? और जब आपका बच्चा 6th स्टैंडर्ड, 7th में, 8th में आता है, तो मम्मी डैडी बोलते हैं कि फलाना बोर्ड का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, बच्चे को समझता नहीं है। तो माय डियर मम्मी पापा, यह वास्ट सिलेबस बोर्ड नहीं बनाता, यह प्राइवेट बुक्स बनाते हैं जो स्कूल चूज करते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि हर बोर्ड का सिलेबस सेम होता है। और अभी तो स्टेट बोर्ड ने भी सीबीएसई जैसा ही करिकुलम कर दिया है, सेम कर दिया है। इतना सिमिलर है कि एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। और 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का पूरे इंडिया लेवल पर सेम सिलेबस है। कब से है? जब कपिल सिब्बल थे एचआरडी मिनिस्टर, तभी ये हो गया था। ओके, आई होप आई हैव क्लियर माय पॉइंट। ऑन जनरल लेवल दिस डिफरेंट यू विल फाइंड इन ऑल बोर्ड्स। Now I am going to talk about the basic difference of all boards. फर्क तो है, बेसिक क्या डिफरेंस है? बहुत सारा सिलेबस तो सेम है। अब सवाल यह पैदा होता है कि फर्क क्या है। इसके लिए हम हर बोर्ड के ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी समझ लेंगे। नाउ मैं हर एक बोर्ड अभी ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। शुरुआत करते हैं, इंडिया में कितने बोर्ड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कि कितने बोर्ड, अपने को 2-3 बोर्ड से हम सबको पता होते हैं। तो एक होता है स्टेट बोर्ड, जो हर स्टेट का होता है, महाराष्ट्र का एसएससी एंड एचएससी बोर्ड। दूसरा होता है सीबीएसई, जो कि नेशनल लेवल पर होता है। फिर आईसीएसई बोर्ड, फिर कैम्ब्रिज बोर्ड, आईबी बोर्ड, उसके बाद आता है एनआईओएस बोर्ड, और कुछ रिलीजियस या लैंग्वेज बेस्ड बोर्ड है, जैसे कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। तो हर एक बोर्ड की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ लेते हैं, हर एक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। लेट्स स्टार्ट विद द सीबीएसई फैक्ट। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कुछ नोट्स है, मैं यहां पे थोड़ा देख के लॉन्ग फॉर्म और सब देखूंगा। तो सीबीएसई यानी क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये एक नेशनल लेवल का बोर्ड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल इससे जुड़े होते हैं, यानी सभी केंद्रीय और नवोदय स्कूल और प्राइवेट स्कूल इससे जुड़े होते हैं। ये इंडिया के साथ 25 कंट्रीज में ये बोर्ड एक्टिव है, जैसे मलेशिया, दुबई, जहां जहां इंडिया ने वहां ये बोर्ड अवेलेबल है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है।
More than 25 to 30,000 स्कूल आर एफिलेटेड बाय सीबीएसई। इनकी विशेषता यह है कि इनका ज्यादा फोकस मैथ्स एंड साइंस पर होता है। यह ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, recognized by all colleges in India and abroad. This is a very important statement. जिन पेरेंट्स का वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांसफर होता है उनके लिए ये बेस्ट है। इसके बुक्स इजीली अवेलेबल है। आपको आपके बच्चों को ट्यूशन लगाना है, जो भला आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि बच्चों को ट्यूशन लगाना चाहिए, पर जो मार्क्सवादी पेरेंट होते हैं, मार्क्सवादी पेरेंट यानी उनको सिर्फ मार्क्स ही दिखते हैं, तो वो बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं। तो आपके बच्चों को ट्यूशन लगाना है तो उसके ट्यूटर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। इसका मेन प्लस पॉइंट यह है कि जितने भी मेजर एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो होता है यह बोर्ड सेट करता है। जैसे कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, फिर जेई नीट क्या होता है, NEET नीट, यही बोर्ड कंडक्ट करते हैं। अभी जाहिर सी बात है कि सीबीएसई के टेक्स्ट बुक्स के आधार पर ही यह एंट्रेंस एग्जाम डिजाइन की जाती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि एग्जाम सिर्फ सीबीएसई के बच्चे ही क्रैक करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू दैट 80% सिलेबस इज द सेम। सीबीएसई का करिकुलम एनसीईआरटी डिजाइन करता है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। It is an autonomous organization of the government of India which was established in 1961. Okay, now pay attention. I am talking about the state board. हर स्टेट का, हर राज्य का इनका खुद का बोर्ड होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में एसएससी और एचएससी बोर्ड है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का करिकुलम एससीईआरटी डिसाइड करती है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड आई एम वेरी डिलाइटफुल टू शेयर दैट आई वॉज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ एससीईआरटी फॉर मेकिंग डीएड एंड बीएड सिलेबस। स्टेट बोर्ड में स्टेट लैंग्वेज कंपलसरी होती है। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी सब्जेक्ट कंपलसरी है, कोई गुजरात में होगा तो गुजरात के स्टेट बोर्ड में गुजराती कंपलसरी होगी। पर कहाँ तक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ तक, 10वीं तक। ओके, 10वीं तक मराठी कंपलसरी होते हैं। और यहां मैं पेरेंट्स का कंफ्यूजन दूर करता हूं। लोगों को लगता है कि सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज, आईबी बोर्ड में लोकल लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होती, पर लास्ट 5 ईयर से एज पर न्यू गाइडलाइंस फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड में लोकल लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। यानी महाराष्ट्र में मराठी सभी बोर्ड को ग्रेड 8 तक कंपलसरी है। ओके, ऑल बोर्ड्स फाइनल 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में वो ऑप्शन में डाल सकते हैं। अभी यह अलग बात है कि कुछ स्कूल इस रूल को नजरअंदाज करते हैं, पर अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो रही है और उन्हें भी कंपलसरी कर रही है, पर ऑलमोस्ट बहुत सारे स्कूल ने भी किया है। स्टेट बोर्ड में उस स्टेट के सभी गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कि जिला परिषद के स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों आते हैं। जैसे सीबीएसई में होता है वैसे ही स्टेट बोर्ड में होता है, गवर्नमेंट के स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल दोनों उसमें आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 25,000 के ऊपर महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के स्कूल है। इनके बुक्स एंड ट्यूटर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम सब उससे ही पास आउट हुए ऑलमोस्ट। तो हर स्टेट में इनका स्टेट बोर्ड होता है। जैसे गुजरात में गुजरात स्टेट बोर्ड है, तमिलनाडु में तमिलनाडु स्टेट बोर्ड है। अभी आपके मन में यह सवाल आएगा कि हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड क्यों है? क्योंकि अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में शिक्षा, एजुकेशन, यह सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है। ओके, कंकरेंट लिस्ट यानी ऐसे फील्ड या सब्जेक्ट जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट द आईसीएसई। ओके, 2 बोर्ड हो गया, अभी मैं तीसरे पे शिफ्ट हो रहा हूं। हियर आई स्टैंड फॉर इंडियन एंड नॉट इंटरनेशनल। बहुत सारे पेरेंट्स को गलत फहमी यह है कि यह बोर्ड इंटरनेशनल है। मैंने एक रिनाउंड न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आईसीएसई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल लिखा देखा है, तो यह बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। आईसीएसई इज इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
established in 1958 अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके, यह एक प्राइवेट बोर्ड है। इसकी विशेषता यह है कि इनका फोकस इंग्लिश लिटरेचर पर ज्यादा होता है। क्यों होता है? जाहिर सी बात है कि यह बोर्ड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने इस्टेब्लिश किया है। इंडिया में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है वह ज्यादातर आईसीएसई से एफिलेटेड है, सभी ने पर ज्यादातर। ओके, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 हजार आईसीएसई बोर्ड के स्कूल है। इसका एक डिसएडवांटेज यह है या लिमिटेशन यह है कि यह स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त इनके सीट बहुत ही कम होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बोर्ड के बारे में। इंडिया में पिछले 15 सालों से खुली शैक्षणिक अभ्यासक्रम प्रणाली आई है, जैसे कि कैम्ब्रिज एंड आईबी बोर्ड्स। कैम्ब्रिज को आईजीसीएसी कहा जाता है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये 120 कंट्रीज में फैला हुआ है। इनके पास वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट होते हैं। यह एनआरआई पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा बोर्ड है। एनआरआई, नॉट इंडियन। इसके बुक्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, ट्यूटर भी नहीं मिलते। इसके इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 450 स्कूल्स है। यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। इसका ज्यादा इंफेसिस इंग्लिश लैंग्वेज पर होता है। यह 2 एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एक आईजीसीएसी और कैम्ब्रिज ओ लेवल। ओके, ऐसा कहा जाता है कि इन स्कूल की फीस हाई होती है, पर ऐसा नहीं होता। इसके बारे में मैं आपके साथ बाद में बताऊंगा। यह जनरली मेट्रो टायर 1 सिटी में इस्टेब्लिश होते हैं। अगेन, ऐसा कहा जाता है कि यह बोर्ड से पास आउट बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यह भी एक अंधश्रद्धा है, इसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगा। और इसका करिकुलम थोड़ा एडवांस होता है, सब्जेक्ट के ऑप्शन ज्यादा होते हैं। ओके, इसके सब्जेक्ट के ऑप्शन ज्यादा होते हैं ये बोर्ड के। बट अगेन, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यह सब्जेक्ट के ऑप्शन सीबीएसई बोर्ड को भी आ गए हैं लास्ट 1 ईयर से। आइए अब नजर डालते हैं आईबी बोर्ड पर। आईबी यानी इंटरनेशनल बैक्लरेट, हाँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ट्विस्ट है, इंटरनेशनल बैक्लरेट। इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 3,500 स्कूल है। ओके, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की नहीं। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 150-150 आईबी स्कूल होंगे। इसका करिकुलम मोर देन 144 कंट्रीज में एक्सेप्ट किया गया है और यह यूनेस्को से एफिलेटेड है। इस बोर्ड की फिलॉसफी बच्चों में इंक्विजिटिव माइंड क्रिएट करना है। बहुत अच्छा थॉट है ये। और पूरा करिकुलम लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के ऊपर है। तो यह बोर्ड इंडिया में कब आया? आईबी कब आया? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब हमने ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी एक्सेप्ट की। तब से फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आने लगे, जैसे जापानीज एंड जर्मन कंपनीज। उनके टॉप मैनेजर्स, मैनेजमेंट के सीईओ के बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में आए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके लिए आईबी बोर्ड इंडिया में लाया गया, ना कि अपने बच्चे उस बोर्ड में डालने के लिए। अब यह फैशन बन गया है, पर कंटेंट वाइज, मेथोडोलॉजी वाइज यह बोर्ड बहुत ही अच्छा है। इसके भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ट्यूटर भी मुश्किल से मिलता है। अगर आप कैम्ब्रिज बोर्ड से कंपेयर करोगे तो यह काफी एडवांस है। आईबी इज हाईली एडवांस। मैं आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र के आईबी स्कूल के मेन कोऑर्डिनेटर जो एफिलिएशन बॉडी पर होते हैं, जब वो मेरे स्टेट बोर्ड के स्कूल में, इस पहले स्कूल में वहां पर आए थे काम से, तो उन्होंने हमारे फीडबैक डायरी में लिखा है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेट बोर्ड स्कूल आई एम विटनेसिंग विच इज फॉलोइंग आईबी करिकुलम। मैं यह पहली स्टेट बोर्ड स्कूल देख रही हूं जहां आईबी करिकुलम की फिलॉसफी चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा था। एक्चुअली
दिस इज ऑल्सो मिथ दैट स्टेट बोर्ड ये आउटडेटेड है और इंटरनेशनल बोर्ड अपडेटेड है। इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। अभी इतना ही कहूंगा कि आईबी फोकस ऑन इंक्विजिटिव माइंड्स। अगेन आईबी में यह मिसकंसेप्ट है कि इनके बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटी में होता है। महाराष्ट्र में आईबी स्कूल बहुत ही कम है, नासिक में तो एक भी नहीं है। नाउ लेट्स कम बैक टू इंडियन बोर्ड। Just if everything is fine, okay. Now let's come back to our again Indian board, जो मैंने स्टार्टिंग को कहा था NIOS, उसके बारे में अभी बताऊंगा। NIOS इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। दिस इज अप्रूव्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ सेंट्रल बोर्ड। यह बोर्ड 1989 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मेन उद्देश्य यह है कि आप बिना स्कूल अटेंड करे एग्जाम पास कर सकते हैं। ओके, है ना मजेदार बात। सेम विद यूनिवर्सिटी। जो पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में भी बच्चों को भेजना नहीं चाहते, किसी भी कारण हो, व्हाटएवर, मतलब फाइनेंशियल हो, होम स्कूलिंग, व्हाटएवर, किसी भी कारण, उनके लिए ये NIOS बोर्ड बहुत ही फिजिबल है। स्पेशली जो ट्रेंड चल रहा है कि होम स्कूलिंग का, उनके लिए ये बोर्ड बेस्ट है। किसी वजह से आपकी पढ़ाई बीच में से अधूरी रह गई है तो आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई मुकम्मल या पूरी कर सकते। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बोर्ड के सर्टिफिकेट के बेस पर आप किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ओके, इससे पास आउट होने के बाद आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में और बाहर भी एडमिशन ले सकते हो। आप हर वो एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो जो दूसरे बोर्ड के बच्चे देते हैं, जैसे जेई, नीट के हो, मेडिकल की, CET हो। यह बोर्ड साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो इससे बच्चों का टाइम सेव होता है। और यह इंडिया का अकेला एक्सक्लूसिव बोर्ड है जो 9th फेल स्टूडेंट को डायरेक्ट 10th का एग्जाम अलाउड करता है और 11th फेल स्टूडेंट को डायरेक्ट 12th एग्जाम अपेयर करने को कंसेंट देता है। जनरली कुछ बच्चे जो इंटरनेशनल बोर्ड में या CBSE को कोप अप ना कर पा रहे हो, उस बच्चों को NIOS से एग्जाम देने का सजेशन दिया जाता है। कुछ लोग देते हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट चॉइस होती है। जैसे मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, पर अभी ये ऑप्शन दूसरे बोर्ड में भी आ गया है। नाउ नॉट एग्जैक्टली ड्रॉप द सब्जेक्ट, बट जैसे कि CBSE में इजी एंड डिफिकल्ट मैथ दोनों में से एक चूज आप कर सकते हो 9th स्टैंडर्ड को, या स्टेट बोर्ड में लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों को राइटर मिलता है, कैलकुलेटर यूज करते हैं, लोअर ग्रेड का मैथ्स एंड साइंस का पेपर देते हैं जिनको LD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। जैसे कि किसी को डिसकैलकुला है, ओके, मुझे डिसकैलकुला है, जैसे कि किसी को ऐसा रहते हैं ऐसे बच्चे जिनको डिसकैलकुला होता है, तो स्टेट बोर्ड में उसे 10th के मैथ्स का पेपर की जगह 7th स्टैंडर्ड और वी कैन से 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का पेपर दिया जाता है, यानी इजी मैथ्स। नाउ कैम्ब्रिज बोर्ड ऑल्सो स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, हर बोर्ड अभी आ रहा है इसमें, कैम्ब्रिज भी अच्छे से कर रहा है इसमें। So, okay, so all my dear parents, whatever I said till now, do you agree with me? Just type yes if you agree, type yes। जो भी अभी मैंने अब तक जो बताया, क्योंकि अभी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेने वाला हूँ। यस मानसी, थैंक यू, एवरीवन इज एग्री, अब तक कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब मैं कॉमन कंफ्यूज करने वाले सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डालिए। ओके, हमारी टीम देखेंगी। ओके, पहला सवाल जो कॉमन है मैं ले लेता हूं, फिर आपके लूंगा। पहला सवाल, क्या स्कूल की क्वालिटी स्टैंडर्ड बोर्ड पर डिपेंड होता है? आई एम रिपीटिंग, क्या स्कूल की क्वालिटी स्टैंडर्ड बोर्ड पर डिपेंड होता है? जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा फलाने बोर्ड में सीखता है। और एक कनेक्टेड सवाल
ये भी है कि क्या बच्चों की इंटेलिजेंस या होशियारी वो किस बोर्ड में पढ़ रहा है उस पर अवलंबन होती है, उस पर डिपेंड होती है। सो माय डियर पेरेंट्स, कैन आई ब्रेक योर हार्ट्स वंस अगेन? सो मे आई ब्रेक योर हार्ट वंस अगेन? तो आंसर यह है कि बच्चों की होशियारी वो किस बोर्ड में पढ़ रहा है उसके ऊपर नहीं होती, बल्कि वो स्कूल और टीचर बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत लेते इस पर होती है। सेम अबाउट स्कूल स्टैंडर्ड। स्कूल कौन से भी हो, बोर्ड के साथ, कौन से भी बोर्ड के साथ एफिलेटेड हो, कोई भी बोर्ड हो, लेकिन टीचर की क्वालिटी अच्छी ना हो या फैसिलिटी ना अच्छी हो, सिखाने का पैशन या जज्बा ना हो, तो वो स्कूल का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सीबीएसई बोर्ड को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बहुत सीबीएसई बोर्ड चाहिए, बराबर, अभी नाजिम बहुत कम है। पेरेंट्स सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूल के एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, और दिल्ली में सभी गवर्नमेंट स्कूल सीबीएसई के ही हैं, और इंडिया में सभी केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के हैं। इवन ट्राइबल आदिवासी बच्चों के लिए भी गवर्नमेंट ने इंग्लिश माध्यम के सीबीएसई स्कूल शुरू किए हैं। अब हम सबको पता है इस गवर्नमेंट स्कूल का क्या स्टैंडर्ड कैसे होता है, लेकिन हम बोर्ड को बदनाम करते हैं कि देखो बोर्ड अच्छा, अब ये नहीं है। अभी कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं, पर उसका परसेंटेज बहुत कम है। मैं बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल जानता हूँ, दे आर डूइंग वंडर्स, पर ज्यादातर तो स्कूल क्वालिटीज और बच्चों का विकास ये 100% डिपेंड करता है उस स्कूल की फिलॉसफी और पेडागोजी स्टाइल पर। पेडागोजी मतलब क्लास में सिखाने का तरीका। मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सिखाने का तरीका बोर्ड्स नहीं बताते। आई एम रिपीटिंग, सिखाने का तरीका बोर्ड्स नहीं बताते, यह बताया जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ के द्वारा, नेशनल करिकुलम फ्रेम के द्वारा। जैसे कि लास्ट एजुकेशन पॉलिसी में कहा था कि बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म से सिखाओ, ज्ञान रचनावाद से सिखाओ। इसका वन लाइन आंसर यह है कि बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सिखाओ। अभी ये रूल सभी बोर्ड्स के स्कूल को और सभी प्रकार के स्कूल को, जैसे गवर्नमेंट, ट्राइबल, आदिवासी, जिला परिषद, प्राइवेट, सभी स्कूल को एप्लीकेबल है। सवाल यह है कि कौन सी स्कूल और टीचर ये इंप्लीमेंट करते हैं। जो इंप्लीमेंट करते हैं उनका स्टैंडर्ड हाई रहता है। अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ स्पेलर एक्सपेरिमेंटल स्कूल। In new education policy, it's all about 21st century skill. 21st century skill बच्चों में लाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए हैं, सजेस्ट किए हैं, जैसे कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग कैसे लाए, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे बढ़ाए, और यह काम हम 10 सालों से इस पहले स्कूल में कर रहे हैं, दैट टू इन स्टेट बोर्ड। अगेन आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर विथ यू दैट जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बन रहा था तब मैंने एनईपी की कमिटी को बहुत सारे सजेशन दिए थे। महाराष्ट्र में कुछ एजुकेशनलिस्ट अपॉइंट किए गए थे, उसमें भी मैं था, और वो सभी सजेशन एनईपी में शामिल किए गए। मेरी डॉक्टर कस्तूरी रंगन के साथ मीटिंग भी हुई थी, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को एनईपी में हम कैसे प्रोविजन करें इसके बारे में। ओके, माय पॉइंट इज, तो ये स्कूल का स्टैंडर्ड और बच्चों की होशियारी, जहानत, इंटेलिजेंस आती है स्कूल की फिलॉसफी, टीचर की मेहनत और सिखाने के तरीके पर डिपेंड करती है। फाइन, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या स्कूल की फीस बोर्ड तय करता है? इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या स्कूल की फीस बोर्ड तय करता है? क्योंकि बोलता है मैं फलाना बोर्ड में जा रहा हूं इसलिए मेरी स्कूल की फीस हाई है। कुछ पेरेंट का कहना है कि स्कूल की फीस कौन से बोर्ड में हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से होती है। क्या यह सच है? दिस इज ट्रूथ? तो इसका आंसर नहीं है। स्कूल की फीस तय होती है स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर से, एक्टिविटी से, टीचर क्वालिटी से,
टीचर को सैलरी कितनी मिलती है, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल में फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, उसके ऊपर ये सब तय होती है, ना कि कौन सा बोर्ड आप फॉलो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जनरली कहा जाता है कि एसएससी बोर्ड की फीस कम होती है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड है उनकी फी हाई रहती है, क्योंकि वो अच्छे फैसिलिटी देते हैं, या उनके टीचर अच्छे होते हैं, या स्कूल एक्टिविटी बेस होती है जिसे एबीएल कहते हैं। अगर मैं अपने स्कूल का एग्जांपल दूंगा, मेरे दो स्कूल है, एक स्टेट बोर्ड का है और एक सीबीएसई का है। स्टेट बोर्ड के एवरेज फी 50,000 है, इसमें ट्रांसपोर्ट, बुक्स, यूनिफॉर्म अलग है। अब मैं बच्चों को एलिफेंट भी सिखाना हो तो रियल एलिफेंट में स्कूल में लाता हूं। हर रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, तो खर्चे ज्यादा होते हैं और हर क्लास में बच्चे कम है, जबकि दूसरे स्कूल के क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, चाहे वो एसएससी हो या सीबीएसई हो या आईसीएसई हो। ऐसी स्कूल की फीस भी मैंने देखी है जो जहां बच्चे ज्यादा होते हैं, 30,000 फीस देखी है मैंने। मैं कुछ आईसीएसई स्कूल जानता हूं जिनकी फीस 25,000 से 35,000 तक है, पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सीबीएसई स्कूल की भी फीस मैंने 20,000 से 40,000 देखी है। अगेन लॉट ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे, और नो फैसिलिटी, और पेइंग लो सैलरी टू टीचर्स। मैंने ऐसे भी स्कूल देखे हैं, आप भी जानते होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड से है, आईसीएसई बोर्ड से है, एसएससी बोर्ड से है, कैम्ब्रिज बोर्ड से है, जिनकी फीस 80,000 से लेकर 1 लाख तक है, पर वहां पर स्टैंडर्ड अच्छा है, फैसिलिटी भी अच्छी होती है। नाउ यू विल बी सरप्राइज दैट 1 लाख रुपीज इजंट इट टू मच? बहुत ज्यादा तो नहीं है 1 लाख फीस? आपको यही लगता है ना कि स्कूल बहुत फीस चार्ज करती है, कमर्शियलाइज हो गई है। तो मैं एक पॉइंट बताता हूं और आगे जाता हूं। दिस इज जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये आज का टॉपिक नहीं, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आपको पता है जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चे के ऊपर गवर्नमेंट कितना खर्च करते, डू यू नो? एक बच्चे के ऊपर एक साल का अप्रोक्सीमेटली 93,000 रुपीज स्पेंड करती है, जो मेरे आपके टैक्स का पैसा है यानी सरकारी स्कूल की फीस कितनी हुई? साल की करीबन 93,000। नाउ यू टेल मी फ्रैंकली, ऑनेस्टली, हु इज चार्जिंग मोर? और क्वालिटी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है, वरना प्राइवेट स्कूल में बच्चे डालेंगे ही क्यों? छोड़िए, ये आज का डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट यह है, मेरा मुद्दा यह है कि स्कूल की फीस कौन से बोर्ड से एफिलेटेड हो उसके ऊपर नहीं होती, वह तय होती है स्कूल के लोकेशन से लेकर स्कूल के टीचर के क्वालिटी के ऊपर। पर यहां एक एक्सेप्शनल कैटेगरी है, वह आईबी बोर्ड, इंटरनेशनल बैकलॉरेट, not Cambridge. I am talking about IB. IB schools are charging high because IB board itself takes some part of fees from every child every year, apart from school fee. No, this exception only with IB. बाकी सभी स्कूल की फीस डिपेंड होती है स्कूल के क्वालिटी से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, टीचर के सैलरी से लेकर, फैसिलिटी तक, और कौन क्या पढ़ा रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल, मैंने बच्चों को क्रिकेट सिखाने के लिए पीटी टीचर अपॉइंट किया है, स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट किया है, क्या मैंने या रणजी प्लेयर अपॉइंट किया है, या सचिन तेंदुलकर खुद सिखाने आ रहा है क्रिकेट बच्चों को? इसके ऊपर डिपेंड होती है। आप बोलोगे सीखना तो क्रिकेट है, पर भाई किससे सीख रहा है? यहां पर फैसिलिटी, ग्राउंड, बैट बॉल एक ही है, पर मेंटोर कौन है? अब यहां पर मुझे सीबीएसई बोर्ड या कैम्ब्रिज बोर्ड या स्टेट बोर्ड ऐसा नहीं बोलता कि कौन अपॉइंट करना है। दे ओनली टेल अस अबाउट बेड है कि नहीं, बस कौन अपॉइंट करे। तो मैंने तेंदुलकर अपॉइंट किया तो फिर वो हिसाब से फीस होगी। सो माय डियर मॉम एंड डैड, स्कूल फीस डू नॉट डिपेंड अपॉन boards. Okay, this is very important. Now let's move to the next question, which is asked by many of the intellectual parent, that international boards जैसे कि IB and Cambridge
आईबी एंड कैम्ब्रिज ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया तो 10th एंड 12th के बाद डायरेक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होती है क्या? बहुत बहुत एकदम कॉमन। या फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उन्हें एग्जाम नहीं देनी पड़ती? नाउ मे आई ब्रेक योर हार्ट प्लीज। तो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द फैक्ट। किसी भी बोर्ड से एजुकेशन लीजिए, आपको फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए सैट, एसीटी सैट या टोफेल या IELTS लाइट्स और जेआरई एग्जाम देनी पड़ती है। 12th स्टैंडर्ड के बाद इंडिया और इंडिया के बाहर आप किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेने का इरादा रखते हो तो यह टेस्ट देना लाजमी होता है, मैंडेटरी होता है। तो ये टोफेल होता क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है? टोफेल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। आपके बच्चों को दूसरे कंट्री में पढ़ने के लिए भेजना हो तो उसे कितना इंग्लिश आता है उसकी यह टेस्ट होती है। आपके बच्चों को इंटरनेशनल स्टडी के लिए जाना हो और वह अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो तो मैथ्स और इंग्लिश के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए सैट या एसीटी एक्ट यह टेस्ट होती है। एसीटी एक्ट यानी अमेरिकन कॉलेज टेस्ट और सैट यानी स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। और आपका बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन, नॉट अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो उसके मैथ्स और इंग्लिश के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके लिए जीआरई यानी जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन ये टेस्ट होती है। आपके बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी इन बोर्ड के पास आउट हो और वह यूके, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो तो उन्हें सैट एग्जाम देनी पड़ती है। कैम्ब्रिज बोर्ड के बच्चे हो और वो भी यूके की यूनिवर्सिटी जो कि 20-25 अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उन्हें भी सैट देना कंपलसरी है। एक्सेप्ट सिर्फ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो उन्हें सैट नहीं लगता। सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी, ओनली वन यूनिवर्सिटी, ओके, सब बाकी किसी ने ओनली वन, एक ही यूनिवर्सिटी में यह टेस्ट नहीं देनी पड़ती है, दैट इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। आपके बच्चे कैम्ब्रिज बोर्ड से पास आउट हो तो उन्हें भी सैट एग्जाम यूके में पढ़ाई के लिए जरूरी है। सिर्फ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा रहे तो ये एग्जाम नहीं होती। और अपने इंडिया के आईबी बोर्ड के पास आउट हो, देखो इंडिया क्या मतलब मैं आईबी का पास आउट है पर इंडिया से नहीं, मैं दूसरे कंट्री से पास आउट हो, जापान के आईबी बोर्ड से पास आउट हो तो वो ये रूल एप्लीकेबल है। पर इंडिया के आईबी बोर्ड से पास आउट हो तो फॉरेन के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ये सारे टेस्ट देना लाजमी है। तो आपके बच्चों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी हो तो आईजीसीएसई ए लेवल पास हुआ तो उसे सैट की एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। पर यूके के दूसरे कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो सैट जरूरी है। तो बेसिकली ये मार्केटिंग हाइप है कि अगर इंटरनेशनल बोर्ड में बच्चा पढ़ता है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन आसानी से मिल जाती है। और फ्रैंकली स्पीकिंग 12वीं के बाद कितने बच्चे फॉरेन स्टडी करने के लिए जाते हैं? जनरली ग्रेजुएट के बाद ही बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो फॉरेन यूनिवर्सिटी जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत खर्चा होता है। ओके, टेक्नीशियन एक 2 मिनट के लिए सिर्फ कैमरा चेंज करेगा बट मेरा आवाज आपके पास आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, बहुत सारे पेरेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अश्विनी से कि मुझे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या हम बोर्ड बीच में चेंज कर सकते हो? क्योंकि 1-2 दिख रहे, 5th का बच्चा ग्रेड है मूविंग टू फॉरेन कंट्री ऐसा आ रहा है। क्या हम बोर्ड बीच में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, ग्रेड 8 तक आप कभी भी बोर्ड चेंज कर सकते हो क्योंकि आप बोर्ड नहीं स्कूल चेंज करते हो। बोर्ड्स तो ग्रेड 9 से लागू होता है। सिर्फ लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट के डिफिकल्टी हो सकती है, लोकल जो लैंग्वेज है चेंज किया तो 9th और 10th को।
स्टेट बोर्ड से आप सीबीएसई या कैम्ब्रिज या आईसीएसई या 7 स्टैंडर्ड तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भले सिटी या स्टेट चेंज हो। जनरली एवरी स्कूल टेक अ एंट्रेंस एग्जाम, उसमें पास हुआ तो स्कूल एडमिशन दे देते, भले वो कौन से भी बोर्ड्स का हो। इवन आपका बच्चा, एक मैंने अभी जस्ट दिखा है कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, पता नहीं उसका बोर्ड दिखा नहीं, पर वो फॉरेन में पढ़ाई के लिए जा रहा है, बेबी ट्रांसफर हो रही है। मेरे स्कूल के कितने बच्चे 3rd में 4th में, पेरेंट्स में कहूँगी आईटी के बहुत सारे हमारे इसमें है, तो वहाँ के उनके स्कूल का, फॉरेन स्कूल का उनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उनके एज अप्रोप्रिएट दिया जाता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है, अपने इंडिया में पेरेंट्स को जल्दी स्कूल में डालने की क्या बोलते हैं आदत होती है, तो यहाँ पे 5.5 या 6 साल का बच्चा 1st स्टैंडर्ड में आता है। अभी 5th स्टैंडर्ड का बच्चा फॉरेन में जा रहा है, तो वो 5th में नहीं लेंगे, वो देखेंगे उसका एज क्या है, वो बोलेंगे नहीं ये एज के हिसाब से वो 4th में आना चाहिए, तो वो 4th में लेंगे, बट एडमिशन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, नाउ नेक्स्ट मूव टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द वेबिनार। उसके बाद मैं सब चैट बॉक्स के सवाल लूंगा। अब यहाँ मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट में आता हूं। मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। कंक्लूजन में सिर्फ समरी में मैं इतना ही कहूंगा कि सभी बोर्ड्स अच्छे हैं, ऑल बोर्ड्स आर गुड, सब बोर्ड्स अच्छे हैं, सीबीएसई अच्छा है, कैम्ब्रिज अच्छा है, एसएससी अच्छा है, ऑल इज गुड, ऑल बोर्ड आर इक्वल, बट ऑल स्कूल आर नॉट इक्वल। अंडरस्टूड? वेरी लाउड एंड क्लियर। ऑल बोर्ड्स आर इक्वल बट ऑल स्कूल्स आर नॉट इक्वल। एडमिशन के वक्त कौन सा बोर्ड चूज करे यह सवाल ही नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। सवाल यह है कि कौन सी स्कूल चूज करे, भले वो कौन से ही बोर्ड से एफिलिएटेड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि स्कूल की फिलॉसफी क्या है, स्कूल का स्टाफ कैसा है, स्कूल के टीचर कैसे हैं, क्या वो अपने बच्चों को इमोशनली हैंडल कर रहे हैं या कमर्शियली हैंडल कर रहे हैं। बोर्ड बच्चों को इंटेलेक्चुअल नहीं बनाता, तो कौन इंटेलेक्चुअल बनाता है? आई टेल यू इन शॉर्ट, बच्चों का ब्रेन जन्म से लेकर 12 साल तक उसे कितना स्टिमुलेशन मिला, ब्रेन के न्यूरॉन्स कितने एक्टिव हुए, सिनेप्स कितने कनेक्ट हुए, वो सिनेप्स कनेक्शन से बच्चे आगे होशियार बनते हैं। और वो कनेक्शन डिपेंड होता है हम पेरेंट्स ने, हम स्कूल वालों ने, हम टीचर ने कितने उस पर मेहनत ली है, समय दिया है, एक्सप्लोर किया है वर्ल्ड, उसके लिए कितने हाथ से काम करने दिए बच्चों को। क्योंकि एजुकेशन हेड टू हार्ट एंड हार्ट टू हैंड होता है। इसे ही लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं या एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। जितना बच्चा 12 साल के अंदर एक्सपीरियंस लेगा उतना उसका ब्रेन एक्टिव होगा। 12 साल के बाद मोर देन 500 मिलियन ब्रेन सेल डेड होते हैं। जितने एक्टिव रहेंगे उतना वो बच्चा इंटेलेक्चुअल बनेगा या बनेगी, लड़की होगी तो। ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में डिटेल आपको जानना हो तो आप मेरा यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो। ओके, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट, ऑल बोर्ड इज इक्वल एंड गुड, स्कूल चूज करो। एजुकेशन का सही अर्थ पेरेंट प्लीज समझ लो आप। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का उद्देश्य बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लाना है, और वो आएगा एक्सपेरिमेंटल पेरेंटिंग से, स्कूल से, ना कि बोर्ड से। एजुकेशन के बारे में आपको और डिटेल जाननी है तो उसके भी बहुत सारे मेरे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है, जरूर देखिए। जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब सच की पाठशाला और स्पेलर स्कूल और सचिन उषा विलास जोशी, मोर देन 500 पर 3-4 ऐसे वीडियोस है जो आपने देखने ही चाहिए, क्योंकि आप अच्छे पेरेंट हो तो वो देखना ही चाहिए। ऐसे सब नॉलेजेबल वीडियोस उसमें डाले हैं। लास्ट में मैं इतना ही बताना चाहूंगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग लानी है, बच्चों में क्रिएटिविटी लानी है, कम्युनिकेशन स्किल लाना है, 21st सेंचुरी स्किल लाने हैं तो अच्छे स्कूल ढूंढो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्पेलर स्कूल में ही एडमिशन लो, आप सभी स्कूल देखो
और उसके बाद इस पहले स्कूल को जानो। फिर आपको समझेगा कि जो बातें आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर रही है वो इस पहले स्कूल 10 सालों से बच्चों में क्रिएटिविटी ला रहे, कोलैबोरेशंस ला रहे, कम्युनिकेशन स्किल ला रहे विथ हाई एकेडमिक स्कोर। मतलब मेरे 4 10वीं के बच्चे पास आउट हुए, 4 बैचेस पास आउट हुए, ऑल आर अबव 90%। मैथमेटिक्स के हर साल में महाराष्ट्र के टॉपर्स हमारे बच्चे रहते। एकेडमिक बच्चों को हाई होने के साथ उनमें क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये बहुत ही महत्व का स्किल बच्चों में लानी है। तो स्कूल जिम्मेदार है, पेरेंट्स जिम्मेदार है, अच्छे पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो यू कैन विजिट अवर स्कूल फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। ओके, बिफोर चेकिंग चैट बॉक्स क्वेश्चंस, ओके मैं अभी ये सब क्वेश्चंस देख लेता हूँ। बिफोर चेकिंग द चैट बॉक्स क्वेश्चन, मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। सिर्फ पेरेंट्स नहीं तो स्कूल लीडर से उनको भी थैंक यू कहूँगा, क्योंकि प्री प्राइमरी स्कूल लीडर्स बहुत यहाँ पे आए हैं, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। सो थैंक यू सो मच, आप सब लीडर्स यहाँ पे आए। मैं पराग झालावत सर को भी मैं पब्लिकली थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव लिया स्कूल लीडर्स को लाने के लिए। सो थैंक यू माय टेक्निकल टीम, महेश भैया, अश्विनी दीदी, भूषणा दीदी, पल्लवी दीदी। वी हैव 2 पल्लवी दीदी, दोनों को मैं थैंक यू कहूँगा, रेशमा दीदी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सबा दिया, अंकिता दिया एंड प्राजक्ता दिया। ओके, हमारे स्कूल में सब जन भैया दीदी कहते हैं, तो जिनको पता नहीं तो बता देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके, मैं अभी सब चैट बॉक्स के क्वेश्चंस देखता हूँ एक एक, और फिर देखते हैं पहला सवाल क्या है। होम स्कूलिंग के पेरेंट हर्षदा पाटिल वांट टू नो होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग के बारे में आपको जानना हो तो कुछ वीडियोस इसके उपलब्ध है अपने पुणे के कुछ स्कूल से। रमेश पानसे सर ने एक स्कूल चालू किया है कोथरूड में, जो 75 पेरेंट्स साथ में आए और वो सब होम स्कूलर्स है। होम स्कूल यानी इतना ही इसका मैं कहना चाहूँगा कि होम स्कूल यानी जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते और जो स्कूल का टाइम सेव करके वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, उसके लिए पेरेंटिंग बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। मेरे एक दोस्त है शिंदे करके पुणे के, वो बहुत ही अच्छा इसके ऊपर काम करते हैं, मैं उनसे कनेक्ट करके दूंगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, ये रिकॉर्डेड है क्या सेशन अपर्णा जी का? यस, ये रिकॉर्ड किया जाएगा और महेश जी जल्दी यूट्यूब पे डाल देंगे। फिर व्हेन एनईपी 2020 विल बी अप्लाइड इन अवर इंडिया? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल प्रवीण जी ने पूछा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, 2 साल दिए हैं अभी, भला कि कोविड ने 1 साल ले लिया उनका। 2 साल में एनईपी के बेस पे करिकुलम इम्प्लीमेंट करने के लिए डेडलाइन दी चुकी है। उसमें इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड ट्रीट एज अ प्री प्राइमरी, सो नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड प्री प्राइमरी रहेगा एंड थर्ड ऑनवर्ड्स ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का व्याप्ति बढ़ा दी है। अगेन आपको एनईपी के बारे में डिटेल जानकारी हो तो आप यूट्यूब पे मैंने उसके ऊपर आधे घंटे का सेशन लिया है। फिर सवाल है नो बैक स्कूल, यशिका का नो बैग स्कूल, ये कॉन्सेप्ट मतलब स्कूल में बैग लानी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, पर वो फिजिकल इतना नहीं है। ओके, आप स्कूल में ही बैग रख सकते हो पर वो फिजिकल नहीं है। अगेन क्योंकि बच्चों का जो बैग का जो वेट है वो कम करने की जो जीआर बनाया था उसके कमिटी पे मैं था, क्योंकि हमारे इस पहले स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया था कि पानी की बोतल और बच्चों के टिफिन, मतलब स्कूल में 30 बच्चे हैं तो एक दिन एक मम्मी पूरे 30 बच्चों के लिए टिफिन बनाएगी, फिर दूसरे दिन दूसरी मम्मी, तो वो एक बच्चे का नंबर 2 महीने में के बाद आता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमने नर्सरी टू सेकंड स्टैंडर्ड तक हमने लिया था, तो उस कमिटी में मैं था, पर प्रैक्टिकली नो बैग स्कूल थोड़ा डिफिकल्ट है। बोर्ड के सवाल ले लेता हूँ मैं रादर देन ये। सर हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट स्कूल हैव गुड क्वालिटी टीचर? एक सवाल ऋतुजा का उनका यह है कि गुड क्वालिटी टीचर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आप किसी भी स्कूल में आप जा रहे हो ना, तो आप वही स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी कीजिए,
कैसा स्टैंडर्ड है, पेरेंट्स से पूछिए कि बच्चे टीचर कैसे बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, क्योंकि इमोशनल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब मैं कभी कभी बोलता हूँ कि ऐड होती है कि ये स्कूल में एसी है, हर क्लास एसी है, तो मैं बोलता हूँ वो टीचर के सर पे एसी है क्या? नहीं तो वो बहुत गुस्सा करने वाली हो तो नहीं होता। तो ये अपने को खुद का एक थोड़ा सा इंक्वायरी के बाद ये पूछ सकते हो आप। संदीप महाजन का सवाल है कि लेस फीस स्कूल डज नॉट प्रोवाइड गुड टीचर। ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्कूल देखे हैं जिनकी फीस कम है और पर वो जो टीचर है, जला भी मराठी मतलब हाडाचे टीचर्स, ओके, वो जो है वो अच्छे से देते पैशन। मैंने ऐसे मराठी स्कूल देखे, नासिक में बहुत एक अच्छा स्कूल है मराठी मीडियम का, तो पैशनेट टीचर होने चाहिए, वो हो गए तो ये होता है। पर मैंने ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल देखे जिनके टीचर की सैलरी 2000 5000 है, ऐसे भी देखे। तो उससे क्या क्वालिटी आएगा? तो आपको अच्छे बच्चों को बढ़ाना है तो टीचर को हाई सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि हाई सैलरी यानी हाई क्वालिटी, क्योंकि अगेन इफ यू लुक एट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के टीचर को तो 5 पे सैलरी है, 6 पे कमीशन है, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट में टीचर को अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो बच्चे का विकास करे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ सिर्फ कमेंट है सतीश पंसारे जी का कि इन सम सीबीएसई बोर्ड विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विद ब्रांड नेम बट द टीचर क्वालिटी इज नॉट गुड बिकॉज दे डोंट पे देम, दे आर कमर्शियल टुडे, नो वन इंटरेस्टेड इन टीचिंग। मैं पब्लिकली इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। श्रेया गाइदिनी का है, सर आई एम स्टे इन मुंबई, हियर फीस ऑफ द सीबीएसई एंड आईबी इज ऑलमोस्ट सेम, just 10K here and there are so should I go IB और CBSE? मैं आपको श्रेया दीदी, मैं आपको एक सवाल यही पूछूंगा, आपके हस्बैंड या आपका ट्रांसफर आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे वक्त होने वाला है तो आप IB जाइए, अदरवाइज CBSE इज अ गुड ऑप्शन। CBSE और ICSE CBSE एंड IB का क्वालिटी सेम होगा, तो कोई भी चूज कीजिए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर IB बोर्ड्स के बुक्स एंड बाकी सबको वो मिलना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, पर नज़दीक है, आपने कहा कि वो नज़दीक है और क्वालिटी सेम है, तो किसी भी डालिए, कोई ये नहीं। पर ट्रांसफर होने वाली है तो गो विथ IB। फिर सवाल इज आफ्टर एनी स्टैंडर्ड 5th grade वी आर गोइंग टू फॉरेन कंट्री दैट विल हैपन। मैंने सवाल का ये जवाब दिया है कि 5th स्टैंडर्ड के बाद एक पेरेंट का सवाल है कि मैं बाहर सीखने के लिए जा रहा हूँ तो फॉरेन कंट्री में, दैट व्हाट विल बी हैपन इन दैट केस। तो मैंने बोला कि 5th स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th और 10th में आपका बच्चा है, 9th में आपका बच्चा है एंड देन यू आर मूविंग, तो थोड़ा डिफिकल्टी आती है, अदरवाइज 7-8 तक कोई डिफिकल्टी नहीं। विल दिस चेंज आफ्टर NEP 2020? मैंने इसके ऊपर सवाल दिया है सवाल। नीलिमा कारवा का ये, प्लीज सजेस्ट गुड स्कूल इन नासिक। मैं खुद स्कूल चलाता तो मैं इसके ऊपर बोल सकता नहीं कि आप इस पहले स्कूल आइए, बट यू कैन विजिट, गूगल कीजिए, गूगल बाबा पे सब कुछ, हर की कुंडली उपलब्ध होती है और वो स्कूल में आप विजिट कीजिए। प्लीज सजेस्ट योर ओपिनियन अबाउट होम स्कूलिंग। मैंने बता दिया इसके ऊपर, अब शायद डबल आया। एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि IB में डालने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया में दे सकते हो क्या? नहीं, थोड़ा डिफिकल्टी होता है। IB का कॉन्सेप्ट ही बेसिकली इंक्विजिटिव माइंड है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें ला रहे, पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देनी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा यू गो विथ CBSE। पर अगेन आपका बच्चा अच्छा है, उसमें वो इंटरेस्ट है, ऑलरेडी बोला कि 80% सिलेबस सेम है, तो आप IB जा सकते हैं, पर वो बुक्स बहुत हेवी होते हैं एंड फिर लोड और सब उसका मतलब फोकस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन आई विल नॉट सजेस्ट IB। बट
creativity and curiosity, then definitely go for IB. हाँ, कैम्ब्रिज डिफरेंट है एंड IB डिफरेंट है, डोंट मिसअंडरस्टैंड। दोनों में बहुत सारा फर्क है मेरे ख्याल से। अभी नेक्स्ट, सर डू यू सी एनी चेंज द वे नाउ एजुकेशन विल बी प्रोवाइड ड्यू टू द अनसर्टेनिटी एंड पैंडेमिक सिचुएशन एवरीवेयर? अपर्णा जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आया है। यस, पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन कोरोना और उसके वजह से क्या हुआ है कि एजुकेशन अभी हाइब्रिड होने वाला है। कौन सा, नहीं समझ लीजिए, कॉलेज में जब बच्चे जाएंगे तो शायद अभी आगे 2-3-4 सालों में ऐसे पूछा जाएगा कि आपको फिजिकल कॉलेज अटेंड करना है या ऑनलाइन करना है या बहुत सारे हाइब्रिड होगा। बट ये सिनेरियो स्कूल में नहीं होगा। अभी बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए नहीं आएंगे। अभी बच्चे नर्सरी में, फर्स्ट में, सेकंड में वो आएंगे डांस करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, इमोशनल क्वेश्चन के लिए, खेलने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, इसके लिए आएंगे। जो ह्यूमन स्किल है वो सीखने के लिए आएंगे। क्योंकि ये पैंडेमिक ने अच्छे से बता दिया है कि मेरे बच्चों को पाइथागोरस सिखाना है तो कौन से वेबसाइट पे मुझे, कौन से यूट्यूब पे मुझे वो अच्छा सिखाई मिलेगा। एकेडमिक अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा बिकॉज ऑफ ये पैंडेमिक, पर इमोशनल क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी में, वही बच्चों को मतलब आपका बच्चा नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड में है, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद कौन से करियर्स होंगे? ऑल करियर्स विच आर रिलेटेड टू माइंड, इमोशन से रिलेटेड करियर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि 50% जॉब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेने वाला है। तो बच्चे स्कूल में ये इसके लिए आएंगे। तो मैं मेरे टीचर्स को बोलता हूँ कि जो टीचर बहुत ही मदरली फिगर है, बहुत इमोशन से, प्यार से हैंडल करती है, उसको बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है, अच्छा उसका डेवलपमेंट है। और ये टीचर है ना सिर्फ मैथ्स पढ़ा रही है, मैथ्स में है, तो मैथ्स के जगह अभी मैथ्स के रोबोट्स आने वाले और बच्चों को सिखाने वाले। तो ये डिफरेंस नेक्स्ट 5 ईयर्स में होने वाला है। तो बहुत सारा अच्छा सवाल पूछा है। मैं और देखता हूँ और कुछ है क्या। इफ यू वांट माय चाइल्ड, ICSE बोर्ड्स ऑप्शन देता है साइंस और कॉमर्स 8th स्टैंडर्ड के वक्त। ऐसा नहीं होता है, इसमें भी तो बहुत सारे क्लॉज है, पर 8th स्टैंडर्ड के इसमें हम इतने जल्दी आइडेंटिफाई करें कि वो बच्चा साइंस में जाएगा क्या कॉमर्स में, वो डिफिकल्ट होता है। तो मैं जनरली जिनका मैथ्स वीक है मैं उनको कहता हूँ यू चूज इजी मैथ्स एंड 10th के बाद वो डिसाइड कर उसके मार्क के ऊपर और तेरे इंटरेस्ट के ऊपर कि तेरे को साइंस में जाना है या आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है। मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल मैंने ये देख लिए, सिर्फ लास्ट यहाँ के देख लेता हूँ कि और कुछ है क्या, फिर हम क्लोज करते हैं। ऑलरेडी कमल जी मैंने बता दिया कि कैम्ब्रिज स्कूल स्टूडेंट विल बी एबल टू कोप विथ द इंडियन करिकुलम। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि बच्चों को हिस्ट्री के बारे में वहाँ की ज़्यादा पता होता है और इंडिया के हिस्ट्री पता नहीं होती, तो थोड़ा कनेक्ट का इशू होता है। या मैंने बोला ना एग्जाम सेट देनी पड़ती है, कौन से भी बोर्ड से हो। आपको कैम्ब्रिज बोर्ड में ही पढ़ाई करनी है तो सेट जरूर नहीं है, अदरवाइज किसी भी बोर्ड में आपको, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको सीखना है तो सेट इज कंपल्सरी। व्हाट इज मॉन्टेसरी पैटर्न? एक्चुअली मारिया मॉन्टेसरी बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट थी और उन्होंने इंडिया में जब आई और पूरे वर्ल्ड में भी वो ये की, तो उन्होंने बच्चों को सिखाने का एक पैटर्न डेवलप किया जो पूरा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का है। पर और वो नाम पड़ गया, तो अभी कोई भी स्कूल बोलता है कि मेरी मॉन्टेसरी स्कूल है वो ये, बट रियल मॉन्टेसरी स्कूल बहुत ही रेयर है। उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे मॉन्टेसरी में आवाज़ नहीं करते, शांति होती है। तो एज ए एजुकेशनिस्ट मुझे लगता है कि म्यूज़िक एंड हल्ला गुल्ला ये बहुत ज़रूरी है 6 साल के अंदर, जो मॉन्टेसरी में नहीं होता है। पर मॉन्टेसरी में बाकी हाथ के काम बहुत होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो एक पैटर्न है सिखाने का। व्हाट आर द प्रॉब्लम विद द स्टेट बोर्ड? मेरे ख्याल से कोई स्टेट बोर्ड में बच्चों को सिखाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे वही सवाल वापस मैं बता रहा हूँ, बोर्ड इज नॉट प्रॉब्लम।
आप स्टेट बोर्ड में बच्चा जा रहा है पर स्कूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम है। और आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में और स्कूल की क्वालिटी अच्छी है तो कोई ये नहीं है। आपका बच्चा बहुत ही बड़ी अच्छे करिकुलम आईबी बोर्ड में है पर स्कूल की क्वालिटी कैसी है, वो टोटली डिपेंड अपॉन द ये। बोर्ड्स में प्रॉब्लम्स नहीं होते, ऑल बोर्ड्स आर इक्वल। प्रसाद जी ने कहा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एजुकेशन इन मदर टंग, डू यू थिंक दैट लर्निंग थ्रू मदर टंग मेक्स द कंसेप्ट मोर क्लियर टू द चाइल्ड। बहुत ही अच्छा सवाल प्रसाद जी ने पूछा है। यस, मदर टंग से मतलब आप अपनी मातृभाषा या परिसर भाषा में आप पढ़ाई करते हो तो अच्छा उसका ये होता है। बट सवाल अगेन वही है कि अभी मदर टंग में सिखाने वाले स्कूल, अच्छे स्कूल बहुत ही कम रहे हैं और डिमांड यूनिवर्सल इंग्लिश मीडियम की हुई है। तो इसमें अभी एक नया रिसर्च जो आया, नया मतलब उसको भी अभी 20 साल हुए हैं, कि 8 साल के अंदर बच्चे 4 लैंग्वेज सीखते हैं। ओके, तो 8 साल के अंदर आप मतलब आप मदर टंग में नहीं सिखा रहे हो, इंग्लिश मीडियम में आप बच्चों को सिखा रहे हो और अच्छे से वही लैंग्वेज के भी बच्चों पे संस्कार होते गए स्कूल में, तो बच्चे इंग्लिश भी सीखते हैं, मराठी भी सीखते हैं, पड़ोस में कोई गुजराती सिखा रहा है बोल रहा है तो वो भी बच्चे सीखते हैं। तो 8 साल के अंदर 4 से 5 लैंग्वेज बच्चे अच्छे से कंट्रोल करते हैं। महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का इसके बारे में एक कंफ्यूजन था, वो बहुत सारे लेटर्स उसके ऊपर आए हैं। टैगोर जी का कहना था कि बच्चों को मदर टंग में सिखाए और गांधी जी का भी वही था, पर गांधी जी ने जब खुद को सवाल पूछा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने उनके इस सवाल का उन्होंने आंसर ऐसा दिया है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का होना चाहिए, काम का होना चाहिए, फिर लैंग्वेज कोई भी हो। तो उन्होंने वो इम्फेसिस दिया था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, नई तालीम में। बहुत अच्छा कहा था उन्हें। सेशन इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। मैं अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और भी कुछ सवाल हो तो आप डालिए, आपके नंबर मेरे साथ है। जिनको भी इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए तो कुछ व्हाट्सअप आपको 2-3 दिन में आएंगे, कुछ अच्छी वीडियोस आप देख सकते हो। और आपको यह जो सेमिनार अच्छा लगा तो इसका यूट्यूब का मैं लिंक जल्दी बना रहा हूँ, आपको शेयर किए जाएंगे। आप बाकी भी जितने भी पेरेंट्स हैं उनको दीजिए, अवेयरनेस कीजिए, एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस बहुत ही इंडिया में कम है, अच्छे अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो जरूर आप लोगों तक पहुंचाइए। सच की पाठशाला ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मोर देन 300 एजुकेशन के आपके सवालों के आंसर मैंने वहाँ पे दिए हैं, जरूर आप देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यह आज का सेमिनार यही खत्म हुआ, ऐसा मैं यहाँ पे जाहिर करता हूँ और मैं ही वोट ऑफ थैंक्स दे रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।